Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 9 video of revision of fundamental units of life. This is part 9 video. Before it, in part 8 video, you have learned the question number up to 26, question number 18 to 26, and this is part 9 in which you will learn the question number 27 onward. Revision of question number 27 onward will be revised in this video lecture, so be with the video till the end. As you all know, this is chapter 1 of biology, so very important and very long chapter because of having the different cell organelles and having different concepts of the function of each of the cell organelles along with the cell division and cell cycle. So you must have to clear cut your concept regarding each and every video. That is part 9. It means not 1-2 video, there are almost 8 video completed from the chapter fundamental units of life. This is all about the matter of cell. The short answer type question, long answer type question, still pending very short answer type question is completed. So you must have to watch all the previously uploaded video in order to clear your concept. Now back to question number 9 and begin the question number 27 of short answer type question. Later, after completion of question number 27, 28, 29, there will be the full completion of question short answer type question. Then we will also begin the revision of question long answer type question. So be with the video lecture, and now back to the question number 27. Now back to question number 27. This is question number 28. This is question number 27, and the last question of previous video was 26. So be with the video lecture. Your all doubt will be clear in this video section. Now back to question number 27. The last question of previous video was 26. The important what is importance of osmosis in unicellular organisms and plants. In unicellular organisms, the osmosis help into the movements of water molecules as well as the different kinds of excretory products. In higher plants, the osmosis help into the transport of water and minerals from root to different parts of the shoots. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन का पहला वीडियो था, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट वीडियो का ये लास्ट वीडियो था 26. अब आते हैं 27. ये इस क्वेश्चन का पहला वीडियो है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं. विच सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज सुसाइडल बैग. ये तो कई बार हो चुका है, बट वाई जब पूछ देता है ना, वाई, तो स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, आंसर तो सबको पता है, लाइसोसोम. इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस आंसर के पीछे कुछ मिस्ट्री छुपा हुआ है. देखो, लाइसोसोम से रिलेटेड एक वर्ड है लाइसोजाइम. लाइसोसोम से रिलेटेड वर्ड है लाइसोजाइम. और जो हमारा लाइसोसोम होता है, उस लाइसोसोम में, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, जो हमारा लाइसोसोम होता है उस लाइसोसोम में एक स्पेशल काइंड्स ऑफ एंजाइम फील होता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम. विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम, द लाइसोसोम बिगिन द डाइजेशन ऑफ अपकमिंग फॉरेन पैथोजेंस लाइक द बैक्टीरिया, लाइक द फंगी, like the protozoan that unfortunately enter into the cell, and it also digests the toxic substances and the abnormal cell organelles. सेल ऑर्गेनेल्स जो एबनॉर्मल बिहेवियर करता है उसको भी ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, बट लाइसोसोम को लॉन्ग टाइम स्टार्वेशन हो बॉडी में, यानी एनिमल्स लॉन्ग टाइम स्टार्वेशन से सफ़र कर रहा हो, एनिमल लंबे समय से भूखा हो, खाना नहीं खा रहा हो, तो लाइसोसोम्स लाइसोजाइम सिक्रीट करके अपने ही सेल ऑर्गेनेल्स और अपने खुद के मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है. इस वजह से इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग. तो लिखेंगे ड्यूरिंग लॉन्ग टाइम ऑफ स्टार्वेशन, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन, it means abnormal condition means long time of starvation, lysosome begin the digestion of its own cell, begin the digestion of its
own components by lysozyme so called suicidal bag। क्लियर है ना। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 28। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद द रेफरेंस ऑफ मेम्ब्रेन कवरिंग। मेम्ब्रेन कवरिंग को रेफरेंस बना के माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्क्राइब करना है। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया में कुल डबल मेम्ब्रेन होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं। क्लियर है। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, देन इट पॉसेस द डबल मेम्ब्रेन। क्लियर है। दैट इज द बेसिक वे टू डिफाइन द माइटोकॉन्ड्रिया। इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज नोन एज द क्रिस्टी। दिस इज नोन एज द क्रिस्टी, सिंगुलर क्रिस्टा and plural Christi, and over the Christi so many ATP molecules synthesized with the help of F1 F0 particles. But your line should be underlined, the sentence should be underlined where you have mentioned the double membrane layer। यानी कि डिस्क्राइब तो करना है लेकिन डबल मेम्ब्रेन सिस्टम को कॉमन बना के करना है। ठीक है ना। डबल मेम्ब्रेन होता है, इसको आप लोग जो है इसका क्राइटेरिया बना के इसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है ना। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम को आपको क्राइटेरिया बना लेना है, तब जाके इसको डिफाइन करना है। ठीक है। तो ये आपको जानना है, ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। क्लियर है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। नेम द सेल ऑर्गेनेल्स विच हेल्प इन पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज्ड ओवर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। कह रहा है कि आप ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स का नाम बताइए जो पैकेजिंग में हेल्प करता हो, साथ ही मटेरियल को डिस्पैच करने में भी मदद करता हो। ठीक है। नेम एंड राइट द फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्म बाय द अबव सेल ऑर्गेनेल्स। यानी उस सेल ऑर्गेनेल्स का नाम लिखना है और उस सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन लिखना है जो क्वेश्चन नंबर ए से बनता हो। यानी कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पहले उस सेल ऑर्गेनेल्स का नाम लिखिए जो पैकेजिंग में और डिस्पैचिंग में पार्टिसिपेट करता हो। तो वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स that help in packaging and dispatching. Also it help to the synthesis of material over the endoplasmic reticulum. So the answer is Golgi complex. Answer is Golgi complex. आंसर सिर्फ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है ना। गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है नेम एंड राइट द फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्म बाय द अबव सेल ऑर्गेनेल्स। यानी इससे कोई सेल ऑर्गेनेल्स बताना है जो इससे सिंथेसाइज होता हो। ठीक है। इससे सिंथेसाइज होने वाले सेल ऑर्गेनेल्स का नाम आपको बताना है जो इसी से सिंथेसाइज हो रहा हो। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से सिंथेसाइज होने वाले सेल ऑर्गेनेल्स के नेम लिखने। तो वो सेल ऑर्गेनेल्स है, नोट कर लीजिए कॉपी में, लाइसोसोम। आपको स्ट्रक्चर में बताया था मैंने कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है उसका स्ट्रक्चर, गोल्गी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में आपको जानना है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है, गोल्गी बॉडी इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है। और पीछे से उसके लाइसोसोम्स ऐसे बबल्स के फॉर्म में निकलते रहते हैं। ये लाइसोसोम का फंक्शन ऊपर मैंने बताया था, हेल्प टू डाइजेस्ट द अपकमिंग फॉरेन सबस्टेंसेस। कौन? लाइसोसोम। ठीक है। लाइसोसोम हेल्प टू डाइजेस्ट द फॉरेन सबस्टेंसेस। सो दिस हेल्प टू द प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनेल्स एज वेल एज रिमूव द टॉक्सिक सबस्टेंसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का क्लियर हो गया है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। अब आते शॉर्ट आंसर टाइप 2 में। इससे पहले शॉर्ट आंसर टाइप 1 था जो 2 मार्क्स के थे। शॉर्ट आंसर टाइप 1 ये 3 मार्क्स के होंगे। एग्जामिनेशन में इसके आंसर आपको 1 पेज में लिखने रहेंगे, 1 पेज में। इससे पहले टाइप 2 जो था 2 मार्क्स का, उसको जो है
लेस देन हाफ, अबाउट हाफ पेज एंड मोर देन हाफ पेज में ही कंप्लीट करने रहेंगे। लेकिन ये जो है आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये एटलीस्ट 1 पेज में करना है। क्वेश्चन 1 क्या पूछ रहा है, राइट इन अ टेबुलर फॉर्म 3 डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। टेबुलर मीन्स क्या होता है, टेबल बना करके। तो इसमें आपको पहले प्लांट सेल्स ऐसे टेबल बना लीजिए, एनिमल सेल्स आप ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पे आप सीरियल नंबर कर दीजिए, सीरियल नंबर 1 2 3, एक इसके लिए पॉइंट, दूसरा इसके लिए, फिर ये सेकेंड पॉइंट्स में एक इसके लिए, दूसरा इसके लिए, फिर थर्ड पॉइंट में एक इसके लिए, एक इसके लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे आपको क्या लिखना, प्लांट सेल में सेल वॉल फाउंड, यहाँ पे लिखेंगे सेल वॉल नॉट फाउंड। यहाँ पे क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च, रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लिखेंगे प्लास्टिड्स फाउंड, प्लास्टिड अपसेंट, इसमें लिखेंगे लाइसोसोम अपसेंट, इसमें लिखेंगे लाइसोसोम प्रेजेंट, इसमें लिखेंगे वैक्यूल बिगर, इसमें लिखेंगे वैक्यूल स्मॉलर। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। फिक्स शेप, इसमें लिखेंगे फिक्स शेप, प्लांट सेल में फिक्स शेप, एनिमल में डू नॉट फिक्स शेप और नॉट फिक्स शेप, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ गए, 1 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ गए। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। कह रहा है कि इसको नीचे कुछ पॉइंट्स है 1 2 3, इसमें से आपको डिफाइन करना है, बताना है कि कौन इसमें से ऑस्मोसिस और कौन इसमें से डिफ्यूजन। एक्वाटिक एनिमल्स यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कह रहा है एक्वाटिक एनिमल्स जो है ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन से। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व है रेस्पिरेशन के थ्रू, उसको डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं। ये क्या है, ऑस्मोसिस है कि डिफ्यूजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन। इसका क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन। मूवमेंट्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे फिशेज है, सपोज दैट ये फिशेज है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में इससे बेटर एग्जाम्पल नहीं है। और ये ऑक्सीजन है, ये वाटर में है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ये गेन कर रही है। तो ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज आउट हो जाएगा, डिफ्यूज इन हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। ये प्रोसेस है डिफ्यूजन। स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स ऑन कीपिंग वाटर। कह रहा किशमिश को आप वाटर में ज़्यादा समय के लिए रख रहे हो तो कुछ समय के बाद किशमिश स्वेल हो जा रहा है। ये क्या है, ऑस्मोसिस है कि डिफ्यूजन है, ये है आपका ऑस्मोसिस। ये क्या है आपका ऑस्मोसिस। रीजन क्या है, स्वेलिंग कब हो रहा है और क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे। ये स्वेलिंग हुआ क्यों, वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा था, मूव कर गया अंदर, और मूव करने के दौरान उसको मिला बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो मूवमेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये सेकेंड का ऑप्शन जो है ऑस्मोसिस हो जाएगा। स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग। अब यहाँ पे देखो, जब आप छींकते हो तो वायरस फैलाते हो, जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है। आप छींक रहे हो, वायरस फैल रहा है, तो ये ऑस्मोसिस है कि डिफ्यूजन, ये है आपका डिफ्यूजन। क्योंकि कोई इंसान, ठीक है, कोई इंसान है वो छींक रहा है तो वो कुछ डिस्टेंस तक वायरस को स्प्रेड कर रहा है, कुछ डिस्टेंस तक वायरस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हवा में स्प्रेड कर रहा है। रीजन क्या है कि इस इंसान में वायरस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये बाहर वायरस का कंसंट्रेशन कम है, तो ये बाहर निकल गया, सारा वायरस बाहर निकल गया, ठीक है। यहाँ पे फोकस आउट करना है आपको। स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिफ्यूजन, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। यहाँ से कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी आराम से। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, विच सेल ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। देखो स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाई वाले क्वेश्चन पे ही होता है। आप इतना तो जानते हो किस सेल को जो है किस सेल को जो है सुसाइडल बैग बोलते हैं, किस सेल को किचन बोलते हैं, कौन से सेल ऑर्गेनेल्स को पावर हाउस बोलेंगे, ये सबको पता है। लेकिन वाई वाले ऑप्शन पे ही सब लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि वाई क्यों लगा देते हैं। वाई का मतलब क्या है कि क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सब लोग सुनेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ अ क्रिस्टी over which the ATP gets synthesized, and that ATP after breakdown gives energy, and after separate out gives energy. So the powerhouse, so the mitochondria called as powerhouse.
माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ओवर द क्रिस्टी so many F0 F1 particles are held, that is very special form of ATP, and that ATP after utilization it will use to the perform different functions. As you all know, the ATP that help to perform the function with the help of energy is energy coin. Keep in mind, that is known as also energy currency. ठीक है, and that also responsible to perform the several function in the body where energy is required. यानी कि जहाँ जहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ये ATP यूज होता है, और ये ATP जहाँ भी स्टोर होगा, ये स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए हम बोलते हैं पावर हाउस. ठीक है, एनर्जी जहाँ भी स्टोर होता है उसको पावर हाउस बोलते हैं. तो इसका क्राइटेरिया बना के लिख लेंगे. Why ATP called energy currency of the cell? Because after breakdown, after dissociation, ATP gives energy. ATP provide energy to the body for different biochemical function and different physical function. So ATP called as energy currency. ठीक है, normally the glucose molecules after breakdown gives the 38 ATP energy. How many? 38 ATP energy. ठीक है, so ATP after breakdown perform the several functions, several metabolic function where energy is required. So the ATP called as energy currency of the cell. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का यहाँ पे देख लीजिए आप लोग. लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का. इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट वीडियो शुरू होगा. ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल एंड लेबल ऑन द फॉलोइंग. एनिमल सेल्स को आपको बनाना है और इन सेल्स को आपको, ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं इसको आपको लेबल करना है. ये क्या है? न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल, और न्यूक्लियस क्या है? लाइसोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, लाइसोसोम्स. ठीक है, ये सब डिफरेंट पार्ट्स है. तो स्लाइड के थ्रू मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एनिमल सेल्स, जिसको आप लोग देख के खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं. स्लाइड के थ्रू देखते हैं इसको. लिसन, ये आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है दैट इज़ एनिमल सेल्स. ठीक है, इसको आप जो है डायग्राम बना सकते हैं एज यूजुअल और इसको दिखा सकते हैं. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख ही रहा है. ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब राइबोसोम्स है. राइबोसोम्स कुछ स्कैटर्ड भी होते हैं साइटोप्लाज्म में भी, लेकिन ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहते हैं. ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ये क्या है आपका? न्यूक्लियस, क्रोमैटिन थ्रेड्स जो बाद में क्रोमोसोम्स बना लेता है, और ये है न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियोलस है. डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोलस. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया ही था. इसके बाद जो है आपका पड़ा हुआ है यहाँ पे लाइसोसोम्स. ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यहाँ पे एसोसिएट है, जिसमें राइबोसोम्स नहीं होता, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वैक्यूल्स देखिए, वैक्यूल्स काफ़ी छोटा है. वैक्यूल्स इसका छोटा है, प्लांट्स में बड़ा होता है. सिक्रेटरी वेसिकल्स है जहाँ से कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकल जाता है. पराक्सीसोम्स है, गोल्गी वेसिकल्स है, गोल्गी एपरेटस है. ये गोल्गी वेसिकल्स ये बाद में लाइसोसोम्स वगैरह बना लेते हैं इसी से. ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एनिमल सेल्स है, जिसको आप जो है आपको बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. आई होप आप क्वेश्चन नंबर अप टू 4-5 तक कर ही लिए होंगे. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन ऑनवर्ड रिवाइज करा देंगे. थैंक यू.